Very beautiful good morning to class 11 biology students. Now after the completion of algae we are going to start the next topic, that is bryophyta. As we have already discussed in the planty kingdom that bryophyta are known as amphibians of plant kingdom. क्या बोलते हैं इनको? Amphibians बोलते हैं. Actually these are present in the moist and shaded areas, especially in the hills. ज़्यादातर हिली एरियाज़ में जो मॉइस्ट और शेडेड होते हैं, जहाँ थोड़ा बहुत पानी की अमाउंट होती है, वहाँ ये प्रेजेंट होते हैं. वाई दे आर कॉल्ड द एम्फीबियंस? एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं इनको? बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द लैंड, ऑन द सरफेस ऑफ द हिल, बट दे रिक्वायर द वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन पर्पजेज. लेकिन मेल और फीमेल गैमेट को फर्टिलाइजेशन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वाटर की. इट मीन्स बोथ हैबिटाट्स आर नेसेसरी. दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट kingdom. If we want to discuss the life cycle of bryophyta, then you should remember two things. दो चीज़ें आपको याद रखनी है और समझनी भी हैं. That every organism life cycle has two phases. हर एक organism की life cycle में दो phases होती हैं. एक phase होती है diploid. इस condition को कहते हैं हम sporophyte condition या sporophytic condition. और एक phase होती है haploid, जिसको कहते हैं हम gametophyte condition. हर एक प्लांट की एक डेफिनेट डिप्लॉयड और हैप्लॉयड स्टेट होती है. तो ब्रायोफाइट्स में जो मेन प्लांट होता है, द मेन प्लांट इज हैप्लॉयड. इट मीन्स वी कैन से दैट द मेन प्लांट ऑफ ब्रायोफाइट इज गेमेटोफाइट. जो मेन प्लांट है ब्रायोफाइट का वो कैसा? हैप्लॉयड है, गेमेटोफिटिक कंडीशन में, क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस करेगा? गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज गेमेटोफाइट. इट मीन्स दे हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, and if when the sporophyte is prepared, then it has a pair of chromosome. So to make your study convenient, I have drawn a life cycle diagram. So let's see what is the diagram, what are the phases of the bryophyta. This is the life cycle of bryophyta. As we know that this is not a very complex plant. इनका जो organization है बहुत complex नहीं होता. They have not leaf, root or stem. They have leaf-like, root-like and stem-like structure. Some members seems the thallus-like. कुछ जो primitive members हैं उनकी body structure thallus जैसी लगती है बिल्कुल, और कुछ members की structure plant-like लगती है, लेकिन उसमें भी like structure means root, stem और leaf present नहीं है. They have root-like, shoot-like, stem and leaf-like structure in them. ठीक है. So this is the main plant, and basically we can say that they have root-like structure which are known as rhizoids. As we know that bryophytes have two groups which are known as liverworts and mosses. If we see these structure rhizoids in the liverworts, these are unbranched and unicellular. Unbranched होती है और unicellular होती हैं. But I have drawn the diagram of mosses. So these mosses have multicellular and branched rhizoids. They have leaf-like structure, they have shoot-like structure, and in between the leaves, इन्हीं leaves के बीच में क्या present होते हैं? Male and female reproductive system, जो मेल और फीमेल गैमेट को बनाते हैं. सो द मेन प्लांट इज एन. मैंने लिखा है यहाँ पर एन. इट मीन्स हैप्लॉइड. इट मीन्स इट इज इन द गेमेटोफाइट कंडीशन. नाउ inside these leaves the antheridia is present and the archegonia is present. Archegonium is the female reproductive system, female reproductive part, and antheridia is the male reproductive part. If we see the structure of antheridia, it seems like a flask which has a stalk. At the lowermost part, egg is present. Upper to it, ventral cell is present. Upper to it, neck canal cell is present. And this flask-shaped structure, it means this archegonia is covered by a lid. And the antheridium looks like that. Stalk, a jacketed cell is present. Inside it, many of the antherozoids are present. Now you can differentiate between them. There is only one egg, but the number of antherozoids are too much high. So when they become mature, when this antheridium become mature, these antheroid disperse in the water. ये जो antheroid हैं वो water में disperse हो जाते हैं. Now you can see that water is essential for the fusion. Water जरूरी है fusion के लिए. So this egg which is present in the archegonium come in contact with the antherozoid in the presence of water, and this egg and antherozoid which is the male gamete fuses together to form the zygote or the oospore. दोनों fusion करके क्या बनाते हैं? Zygote, oospore. Now listen me carefully. Plant is haploid, male female part are haploid, male female gamete are haploid. But when they fuse together, n plus n, it means the zygote is 2n. zygote क्या बन गया? 2n. Now this zygote develops and changes into embryo. ये zygote change होता है, multicellular structure बना देता है, जिसको कहते हैं embryo. It means it is also 2n.
Okay, now this embryo do not develop further, it changes into another structure which is known as sporophyte. अब जो 2n है वो क्या बन गया, स्पोरोफाइट बन गया है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट. इट्स स्पोरोफाइट हैज 3 पार्ट्स. इसके स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं, फुट, बेसल पार्ट, सीटा मिडिल पार्ट एंड कैप्सूल. फुट, सीटा एंड कैप्सूल which is covered by a cap-like structure that is known as calyptra. Now you can see this sporophyte is present over the gametophyte. ये जो sporophyte structure है जो किससे बनी है, एम्ब्रियो से, जो वो किसके ऊपर प्रेजेंट है, आपके गेमेटोफाइट के ऊपर प्रेजेंट है. Now you can give the conclusion this gametophyte is photosynthetic, but it is not photosynthesis. It cannot make its food by its own. That's why it is dependent on the gametophyte for its food. ये फोटोसिंथेटिक नहीं है, खुद से फूड नहीं बना सकता, इसीलिए किसके ऊपर डेवलप हो रहा है, गेमेटोफाइट के ऊपर. इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसी से अपना फूड लेता है. इफ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ कैप्सूल, अगर हम इस कैप्सूल की इंटर स्ट्रक्चर को देखें तो इस तरह का दिखाई देता है. कैलिप्ट्रा इसकी कवरिंग है, एक तरह से लिड मान के चलें. उसके नीचे पेरिस्टोम टीथ होते हैं, जैसे हमारे 32 टीथ्स होते हैं उसी तरीके से इसमें भी एक रो में लगे हुए 32 पेरिस्टोम टीथ्स होते हैं. In the middle of the capsule spore mother cells are present and the lower part is the seta. मैंने यहाँ पर फुट शो नहीं करा, एक बहुत थोड़ी सिंपल सी स्ट्रक्चर आपके लिए शो कर दी है. नाउ इनसाइड दिस कैप्सूल सो मैनी स्पोर मदर सेल्स आर प्रेजेंट. बहुत सारी स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं. दीज स्पोर मदर सेल्स डिवाइड बाई म्योसिस. ये जो स्पोर मदर सेल्स हैं वो म्योसिस के थ्रू डिवाइड होती हैं. एंड वन स्पोर मदर सेल फॉर्म्स 4 स्पोर्स. एक स्पोर मदर सेल म्योसिस करके कितने स्पोर्स बनाती है, 4 स्पोर्स. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पोर टेट्राड. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्पोर टेट्राड. टेट्राड मीन्स 4, टेट्रा मीन्स 4, स्पोर टेट्राड. ओके, नाउ व्हेन दिस स्पोर गेट द फेवरेबल कंडीशन. अब ये जब स्पोर फेवरेबल कंडीशन इसको मिलती है, उससे पहले एक चीज़ बताती हूँ. ये जो कैलिप्ट्रा और ये जो पेरिस्टोम टीथ हैं वो इसकी डाइसेंस में हेल्प करते हैं, इसके फटने में हेल्प करते हैं. जब कंडीशंस ड्राई हो जाती हैं तो पेरिस्टोम टीथ में भरा हुआ जो वाटर है वो ड्राई हो जाता है, जिससे ये जो पेरिस्टोम टीथ हैं वो ओपन हो जाते हैं, कैलिप्ट्रा भी ओपन हो जाता है. स्पोर मदर सेल किस में डिवाइड होती हैं, स्पोर्स में. और ये स्पोर्स डिस्पर्स होकर, जर्मिनेट होकर फिर से क्या बना देते हैं, एक नया ब्रायोफाइटा प्लांट बना देते हैं. सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस लाइफ साइकिल. एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इस लाइफ साइकिल का और ड्रॉ करिए अपने नोटबुक में, उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए. नाउ यू कैन सी, मैंने एक डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करा है. एक जो इसकी हैप्लॉइड और जो डिप्लॉइड कंडीशन है इसको अलग अलग किया है. यहाँ आप देख सकते हो, इसको मैंने अलग किया है. नाउ यू कैन सी दिस इज हैप्लॉइड, दीज आर हैप्लॉइड, दीज आर ऑल्सो हैप्लॉइड. ये भी हैप्लॉइड. यहाँ जो स्पोर टेट्राइड बने वो भी हैप्लॉइड. ठीक, ये जो स्पोर बने मतलब सब हैप्लॉइड. लेकिन इधर जितने भी इसके लाइफ साइकिल के जो पार्ट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, डिप्लॉइड हैं. कैसे, एम्ब्रियो डिप्लॉइड हो गया, ये जो आपका स्पोरोफाइट बना वो भी डिप्लॉइड हो गया, ये भी डिप्लॉइड हो गया, स्पोर मदर सेल भी डिप्लॉइड. तो इतना पार्ट क्या शो कर रहा है आपका, गेमेटोफिटिक फेज को, और जो बाकी पार्ट है वो क्या शो कर रहा है आपके स्पोरोफिटिक फेज को. सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा. नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस द लिवरवॉर्ट एंड मॉसेस एंड द डिफरेंस बिटवीन दैम, विच इज अ वेरी, हम ये कहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिवरवॉर्ट एंड मॉसेस. टिल देन, गुड बाय, हैव अ ब्यूटीफुल डे.